उधर लेके जाने लग रहे हैं। हमने बोला हमारा मरीज़ तो हमें दिखाओ ना एक दफ़ा, लेकिन नहीं जाने दिया, हमें तो जाने नहीं दिया। जब मैं ऑपरेट करके डॉक्टर बाहर आई है ना, वो हमको नज़र ही नहीं आई किधर गई है। 10 मिनट में वो अंदर गई है और जल्दी जल्दी बाहर आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान मुग़ल। नाज़रीन, इस टाइम मैं उस घर में मौजूद हूं जिस घर में खुशियां आनी थी लेकिन वो मातम में तब्दील हो गई। क्या हुआ आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि एक औरत, हामला औरत जो एक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक बना रखे हैं, उनके पास गई और ज़िंदा वापस ना आ सकी। उस डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर का नाम क्या है, कौन सा क्लिनिक है, वो आपको सारी डिटेल बताऊंगा। उनके लवाहिकीन से भी बात करेंगे और आपको सारी डिटेल उसकी बताऊंगा कि क्या मामला हुआ। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ नरगस के लवाहिकीन, जो नरगस जिसको डॉक्टर अताई डॉक्टर ने जिसको मौत के घाट उतार दिया, ये कहना गलत ना होगा। इस बच्चे की पैदाइश के बाद पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया, प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए हैं उसने, और अताई डॉक्टर है वो, जिस वजह से उसकी डेथ हुई। किस तरह हुई, मेरे साथ उसके लवाहिकीन मौजूद हैं, मैं उनसे जान रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗਦੀ? बहू है मेरी। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ? कुछ भी नहीं है, चल के गई है। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪੇਟ 'ਚ। ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ। 22,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਮਾਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਦੁਕਾਨ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਝ 5 ਵਜੇ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਇਓ, 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਝੋਕੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਾ ਬੇਟਾ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੁਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਗਿਆ ਦੌੜਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜਾਂ ਬਈ ਸਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਟਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਈ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਵਸੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਅਸਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੀ ਜੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ डॉक्टर का? नशीन फैसल। नशीन फैसल। जी 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 नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पे खुशियाँ आनी थी। खुशियाँ तो आई लेकिन मातम भी साथ लेके आई। एक अच्छी भली औरत डॉक्टर के पास जाती है। अल्लाह के बाद अगर देखें तो डॉक्टर एक वसीला होता है कि इंसान उसके पास इस उम्मीद से जाता है कि मैं जाऊँगा तो मुझे मेडिसिन देगा तो अल्लाह मुझे शिफा देगा। लेकिन अगर डॉक्टर ही जालिम और जाबिर बन जाएं, डॉक्टर ही शिफा के बदले मौत बांटने लग जाए, तो फिर इंसान किधर जाएगा? जी मेरे साथ मरहुमा जो नरगिस बीबी हैं, उनकी भाभी और नंद भी वहाँ पे मौजूद थी। सारा वाक़या उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो इन्हीं के साथ ही हुआ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब आपने उनसे पूछा कि डेथ हो गई है हमारी भाभी की, या तो क्या उन्होंने आगे उनका रिएक्शन क्या था डॉक्टर का? भाई वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, गुस्से में हमसे बात कर रहे थे। हमने काफ़ी दफ़ा पूछा उनको कि हमारा मरीज़ कैसा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहते हैं थोड़ी देर में बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन नहीं। तो कहते हैं हमारी एम्बुलेंस आने लगी, हम ना हादम अली रोड पे डॉक्टर वसीम का हॉस्पिटल है, उधर लेके जाने लगे। हमने बोला हमारा मरीज़ तो हमें दिखाओ ना एक दफ़ा, लेकिन नहीं जाने दिया, हमें तो जाने नहीं दिया। लेकिन उसके देवर गए हैं, फिर उन्होंने बाहर आके हमें बताया कि नरगिस की डेथ हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपसे लड़े भी हैं? जी, जब वो लेके जा रहे थे ना, तो तब हमने पूछा कि किधर लेके जा रहे हैं? कह रहे हैं इसे वसीम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जो खादम अली रोड पे है, हम उधर लेके जा रहे हैं। लेकिन उस तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, तब तक वो ज़िंदा नहीं थे, डेथ हो चुकी थी। तो हमने बोला कि उधर क्यों लेके जा रहे हैं, इनकी तो डेथ इधर ही हो चुकी है, आप उधर क्यों? कह रहे नहीं अभी इनका दिल चल रहा है, उधर वेंटिलेटर पे लगाएंगे, आईसीयू में शिफ्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन जब यानी कि वो ड्रामेबाजी करनी शुरू हाँ हो जी, गई। कभी कह रहे हैं इनका दिल चल रहा है, कभी इनकी सांस अटक गई है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ। सही बात नहीं उन्होंने हमें बताई कि अभी इनकी डेथ हो चुकी है। जी नाज़रीन, ये वो लेडीज़ हैं जो वहाँ पे मौजूद थी, जिनके साथ ये सारा, जिन्होंने अपना सारा वाक़या अपनी आंखों के सामने देखा। और अला हुकाम है, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे अताई डॉक्टरों को 302 के मुकदमे में जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज करना चाहिए। आपको वो जो नरगिस बीबी है उनकी वॉइस भी सुनाता हूँ कि जब वो ठीक सी, जहाँ जब उनके फोत होने से तकरीबन 2-2.5 घंटे जब वो हॉस्पिटल में मौजूद थी, वो अपनी भाभी को मैसेज करके क्या कह रही हैं मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैसेज मैं आपको सुना रहा हूँ जो 2 से 3 घंटे पहले, जो आपको माँ जी ने भी पहले बताया कि वो डॉक्टर के घर कोई ख़त्म था, कोई महफिल थी, तो वो किस तरह वहाँ पे तड़प रही थी और वो मैसेज करके अपनी भाभी को क्या कह रही थी, ये सुनिएगा। डॉक्टर नहीं हुई है डॉक्टर थे जो ऑपरेशन करना दूसरी आई तो कहती मैं करा दी बेटे मैं अपने को पुराना की मशीन दा सकता हूं पुराना तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं सर ये अब दूसरा मैसेज सुना रहा हूँ। पता नहीं कि 2 बजे की होती पहले तक नहीं आई। जी ये वो छोटा सा बच्चा है जिससे उसकी माँ को छीन लिया गया। एक उसका नरगिस बीबी का ये बेटा है जिसे ये दोनों बच्चे मस्कीन हो गए, जिनकी माँ को उनसे छीन लिया गया और ऊपर से उनको धमकियाँ भी दे रहे हैं कि जी हम आपके ख़िलाफ़ FIR करेंगे। उसने खुद ही तैयारी कर ली है, उसने ही आगे करनी है और ऑपरेशन करना। 5 मिनट में तैयारी भी कर ली ऑपरेशन की और ऑपरेशन भी कर दी है। अच्छा, आप उनके हस्बैंड? जी मैं उनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, ये मैसेज सुनाइएगा ज़रा। अपनी तैयारी करती है सारी अंदर जाना ना अरे आपकी तैयारी करनी है बेहोश करने वाले डॉक्टर भी अंदर ही है तो उन्होंने बेहोश कर रहा है बेहोश हो गया बस जितना टाइम लगना ऑपरेशन करते 10 मिनट नहीं लग रहे
बस बेहोश होंदे जेह्ड़ा टाइम लगना बेहोशी बिच चिंता बेहोश हो गए तो समझो ऑपरेशन हो गया नाल ही। जी नाज़रीन, ये आपको मैंने 3 मैसेज सुनाए हैं और आप ही लोग ये फ़ैसला करेंगे कि ऐसे अताई डॉक्टरों के साथ क्या करना चाहिए। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो फिर इनके साथ ड्रामेबाज़ इनके साथ लड़ झगड़ के उनको एक और हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। वसीम हॉस्पिटल हादम अली रोड पे मौजूद है। बंदे की डेथ हो गई है, तुमने गलती क्या, तुमने गुनाह किया है कि एक औरत, उसकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा कि वो काफ़ी बीमार है या उसको कोई तकलीफ़ है। ऐसी हालत में तकलीफ़ तो है, लेकिन कोई बीमारी, कोई उसको होश ना हो, वो बीमार गई हो, उसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो, ऐसा तो उसकी आवाज़ से नहीं लग रहा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਵੋ। वसीम है सब, वसीम हॉस्पिटल में जब लेके गए हैं ना उसे, तब कह रही है कि मैंने ऑपरेट नहीं किया। वहाँ पे जाके ना वो कहती है कि मैंने ऑपरेट नहीं किया। फिर हम जब अंदर गए ना कि आपने ऑपरेट नहीं किया, तो कहती है जो होता है आपसे आप वो कर ले, मैंने ऑपरेट नहीं किया। साफ मना कर दिया उन्होंने। 2:30 से 3 बजे का टाइम है, 2:30 से 3 बजे का टाइम है। डॉक्टर वसीम के लड़कों ने मुझे फ़ोन किया है मेरे नंबर पे, आपके खिलाफ FIR देनी है, उल्टी आपको हमने फंसाना है। उसने मुझे फ़ोन बंदा भी, बीबी भी आपकी उन्होंने मारी है। मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर है? हाँ। आपकी सिस्टर है तो मुझे फ़ोन किया, आपके खिलाफ या फिर आपके खिलाफ FIR दे देनी है, बाज आ जाओ। हमने उसको बोला जो आप कर सकते हो कर लो, हम भी जो कर सकेंगे हम कर देंगे। जी नाज़रीन, ये वो नरगिस बीबी के खामद हैं और ये भाई हैं और ये देवर हैं, जिन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा धक्का दे के खोल के अपनी भाभी को देखा कि उसकी डेथ हो गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम फैसल है। फैसल भाई, क्या हुआ मामला? जब उनका ऑपरेट तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन ऑपरेट अच्छे तरीके से नहीं हो उनसे। जब मैं ऑपरेट करके डॉक्टर बाहर आई है ना, वो हमको नज़र ही नहीं आई किधर गई है। 10 मिनट में वो अंदर गई है और जल्दी जल्दी बाहर आ गई है। हमने पूछा डॉक्टर किधर गया, वो बोलती है वो उनके घर में महफिल है, मेहमान आए हैं, वो चली गई है। यानी कि पेशेंट को मरने के लिए छोड़ गई और वो चली गई है। जी उधर ही छोड़ दिया है, वो चली गई है। स्टाफ बाहर आया, स्टाफ को हमने पूछा हमारा मरीज़ कैसा है, बोलती है भाई बिल्कुल ठीक है, आपका मरीज़ को कुछ नहीं हुआ, मुबारक हो आपको बेटा हुआ है। लेकिन वो जब पूरा मामला जब खुल के सामने आया तब बताया बेटे के लिए, पहले बेटे के लिए भी नहीं बताया था उन लोगों ने हमको कुछ भी। हमने 4 दफ़ा, मेरी वालदा ने भी पूछा है, मैंने भी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने फिर वो एक लड़का है उधर से, मैंने बोला भाई अभी हमारा मरीज़ अंदर है, क्या सर्वेशन है उसकी, कुछ बताओ। वो बोलता है कि मरीज़ ठीक है, आपका बेफिक्र ना करो, दुआ करो आप बस। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं दरवाजे के पास गया हूँ, उधर औरत बैठी थी एक, उनकी कोई रिश्तेदार थी, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इनकी रिश्तेदार थी? वो डॉक्टर की अपनी खुद की रिश्तेदार थी। उधर गुंडे भी रखे हुए हैं उन लोगों ने हॉस्पिटल में, जो लोगों को धमकाते हैं। जी जी, गुंडे रखे हैं, धमकाते हैं। जी जी बिल्कुल, अपना उन्होंने पूरा हमला इख्तियार किया है। मैंने ज़बरदस्ती ज़ोर दिया दरवाजे को और अंदर चला गया हूँ। अंदर जाके मैंने देखा है तो उधर उसके पाँव के नीचे ना तकिया दिया हुआ था और ऐसे था जैसे को बकरा नहीं काट दिया, खून से पूरा कमरा भर दिया था खून से। बेड भी, कपड़ा उसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उसकी। मैंने उनको पूछा ये आपने बकरा इधर ज़बह किया है, बोलती हैं खामोश हो जाओ। मैंने बोला क्यों खामोश हो, आपने उसकी दत कर दिया है इधर। जब उधर उधर फिर इतनी देर में एक बड़ा डॉक्टर, इन्होंने वो वसीम डॉक्टर है, उसके साथ एक और डॉक्टर, ये दो डॉक्टर उधर आ गए हैं। जब डॉक्टर उधर आए हैं उन्होंने मुझे चेक चुक किया, बाहर निकाल दिया, फिर मुझे अंदर बुलाया। बाद में मुझे बोलते हैं आप क्या लगते हैं इसके, मैंने बोला मैं इनका ये रिश्ता है मेरा इनसे ना, देवर हूँ जी। उन्होंने फिर मुझे बोला है कि ऐसे ऐसे इसको ना झटके दिए हैं, ऐसे इसका दिल नहीं चल रहा, उधर ही बोल दिया। मैंने बोला इसकी डेथ हो गई है, बोलता है नहीं इसको, मुझे बोलते हैं इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। हम उधर ही डेड बॉडी रोक सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं रोकी कि ताकि हम पे कुछ मुकदमा ना डाल दे, कत्ल हम पे ना डाल दे। ये सरासर कत्ल किया उन लोगों ने, हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। मर्जन नवाज से अपील है, इंसाफ चाहिए हमें। और ये उधर लेके चले गए हैं वसीम हॉस्पिटल, अपना हादम अली रोड पे हॉस्पिटल है, उधर लेके गए हैं। ये जब अंदर लेके गए हैं, ICU में लेके गए हैं, ये सबको बाहर निकाल रहे हैं। मुझे बोलते हैं आप बाहर जाओ, मैंने बोला मैंने बाहर नहीं जाना, मैं इनके साथ अंदर जाऊंगा। ये तो पहली डेड बॉडी, आप इसको अंदर लेके क्या करेंगे। मैं इनके साथ ज़बरदस्ती अंदर गया हूँ। इन लोगों ने बस मेरे सामने वो कोई टीके लगाए हैं, कोई ड्रिपें लगाए हैं, ऐसे जो मशीन चलती है ना ऊपर, वो बिल्कुल नहीं चल रही, कुछ भी नहीं बता रही थी मशीन। बाद में मुझे साइड के डेड बॉडी को ही इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे ये लोग। आपने अपनी आंखों से देखा? मैं अपनी आंखों से हल्फन बता सकता हूँ, मैं
कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, मैं इनके साथ ही था। जब अंदर इन्होंने जब पूरा समझाया ना कि ये कुछ भी नहीं, अभी इनको पता चल गया है, फिर मुझे डॉक्टर ने साइड पे किया, वसीम साहब ने मुझे बोलते हैं ये डॉक्टर की नाअहली की वजह से ये हुआ है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना करना। वसीम साहब ने जी, बोला। वसीम साहब ने खुद मुझे बोला है। ये इनको डेड बॉडी क्यों लेके गए उधर, हमें ये बताना चाहिए ना। वो अपने आप को बचाने के लिए ना मुझे साइड पे बोलता है। वो खुद आए हैं बुशरा हॉस्पिटल में आए हैं, वो खुद लेके गए हैं डेड भगत है। जी जी, वो धमकियाँ दे रहा है, बार बार धमकियाँ, फ़ोन पे भी धमकी दी हैं अपने लड़कों के ज़रिए, और एक धमकी आई है पैसों की आई है, तो वो इस तरह धमकी दे रहा है। बाकी उसके अपने बंदे अंदर से कह रहे हैं कि ये जो है ना सियालकोट के किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी केस खराब हो जाता है और ये पकड़ते हैं खुद। ये लेके जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, जब मसला ख़राब हो जाता है मरीज़ के जो लाहिकीन होते हैं उनको धमकाते हैं, उनको गुंडे वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। ये जो हॉस्पिटल जिधर इस लड़की का ऑपरेशन हुआ है ना, वो आज 4 दिन से बंद है, वो भागे हुए हैं उधर से। भागना ही था, कत्ल किया हुआ है उन्होंने। अभी भी उधर से भागे हैं, अभी भी उधर ताले लगे हुए हैं, तो धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं फ़ोन करके, कभी किसी के जरिए कभी किसी के जरिए। अगर ऑपरेशन सही होता तो फिर उनको भागना नहीं चाहिए था, हॉस्पिटल खुला होना चाहिए था। पुलिस उन्होंने भागना था। अच्छा, मुझे उनके खावंद भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये भाई भी हैं उनके मेरे साथ। अच्छा, पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? कुछ भी नहीं अभी तक, कोई कोऑपरेट नहीं है? कोऑपरेट नहीं है। FIR दर्ज कर दी है, तो कोऑपरेट अभी तक कोई नहीं है। यानी कि आप क्या चाहते हैं, आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और जो हमारे IG पंजाब साहब हैं उनसे क्या चाहते हैं कि पुलिस आपके साथ किस तरह ताउन करे? हम जी इंसाफ चाहते हैं। चलो हमारे साथ जो होना था हो गया, जो हमारे नेक्स्ट जाने वाले हैं उधर, कोई भी माँ हो गई, बहन हो गई, कोई भी होगा उसके साथ ऐसा ना हो। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि हमारे साथ जो होना था वो हो गया, आगे से किसी मरीज के साथ ऐसा ना हो। ये अताई डॉक्टरों पे कुछ करना चाहिए इनको। ऑपरेट से 2 या 3 मिनट पहले मेरी बेगम से बात हुई है, मैंने पूछा है उसने कब आना है और ऑपरेट में कितनी देर लगनी है। उसने मुझे ये बताया है कि उसने आना है और सारा इंतज़ाम ऑपरेट का करना है, उसके बाद जाके ऑपरेट होना है। 5 मिनट में कौन सा सारा जो है इंतज़ाम करना ऑपरेट के लिए, और 5 मिनट में बच्चा भी हो गया और डेथ भी हो गई है। तो डॉक्टर नशीन है ना, ये चेस्ट हॉस्पिटल में बैठती है सियालकोट। जो पहला ऑपरेट किया था ना इसने वहीं किया था, और पहले भी दवाई वहाँ से खाई है और अब भी दवाई वहाँ से खाई है इसने। और जब ये लास्ट मंथ चल रहा था तो इसने खुद बोला था कि मेरा हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ जाएं। किस नाम से हॉस्पिटल? ये बुशरा बेगम है। बुशरा बेगम हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि इन लोगों की दुकान है, वो क्लिनिक है, यानी कि लोगों को लूटना, उनकी डेथ करना और वहाँ से भाग जाना। डॉक्टरों वाला कोई काम नहीं किया इसने, और ये आज भी यहाँ से बंद करके, ये कत्लेआम करके, तो ये चेस्ट हॉस्पिटल में अपनी नौकरी बैठ रही है अभी भी। ये हमारा कानून है, जो वो कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, जो हमारे बड़े ओहदे वाले हैं वो कोई हेल्प नहीं कर रहे, और कोई भी हमारा साथ नहीं अभी तक दे रहा। जी नाज़रीन, ये उस नरगिस बीबी के लवाहिकीन थे, उनका कहना ये था कि कोई भी हमारे साथ पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही। मैं अपने वज़ीर आला पंजाब और जितने आला अहदेदारान हैं, IG पंजाब साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि जैसे दूसरे जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ आपने क्रैकडाउन किया ना, ये भी जराइम है, ये भी जुर्म है। ये जो अताई डॉक्टर हैं इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन लिया जाए। इसी के साथ ही सलमान मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हामिद व नासिर।